گندم کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانا وقت کی اہم ضرورت، جدید ٹیکنالوجی کی اپنانا ہوگا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع میلسی مار طالب حسین اور زراعت آفیسر توسیع گڑھا موڑ کیسر سلطان تنولی کے زیر اہتمام گڑھا موڑ کے مقامی ریسٹورنٹ میں کاشتکاروں کے لیے گندم کی جدید کاشت کے طریقہ کار پر مبنی ایک عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں علاقہ کے معروف مقامی کاشتکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار کے شرکاء سے محکمہ زراعت کے افسران نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور حاجی محمد رمضان صاحب جو ہمارے میزبان کاشتکار بھی ہیں اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں، انہوں نے یہ حال سجانے میں اور یہ میلہ لگانے میں، رونق بنانے میں بہت کردار ادا کیا ہے۔ سارے دوستان کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ میں نام نہیں لے سکتا۔ السلام علیکم۔ تبدیل ہوتے گئے اور اس وقت موجودہ حالات میں وطن عزیز میں کل 22 تا 26 ٹن سالانہ گندم کی پیداوار بڑھانی ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ تشریف لائے ہیں ہمارے ہال میں ڈائریکٹر ڈاکٹر سرچ اینڈ فارمز جناب عاشق سانگھی صاحب، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ریسرچ میں جو ڈائل ہوئے ہیں، ہم کس طرح ہمارا فارمر جو ہے کون سی پیداواری ٹیکنالوجی اچھی ہے جس کو اپنا کر۔ میرے معزز مہمانوں گرامی اور تمام ذمہ دار بھائیوں، ہم گندم کی پیداوار ہم سالوں سے کاشت کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں نئی ریسرچ آ جاتی ہے جس کو ہم اگر استعمال کریں تو اس کی پیداوار مزید بڑھا سکتے ہیں۔ وہ کیا طریقے ہیں جس کے ذریعے ہماری گندم کی پیداوار بڑھ سکتی ہے؟ تو میں چند پوائنٹ، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، چند پوائنٹس بتاؤں گا آپ کو۔ ایک تو ہماری گندم جو ہے نا لیٹ کاشت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سارے ذمہ دار یہ گندم کی پیداوار کے لیے بہتر کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت اس میں یہ کر رہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کسان کو کوشش کرتی ہے کہ اس کی کاشت کم ہو۔ ڈی اے پی کے اوپر 1000 روپے کی سبسڈی دی گئی، اور وہ نہ صرف دی گئی بلکہ اس کو کوشش کیا گیا کہ اس کو سہل بھی بنایا جائے تاکہ ڈیلر کے پاس ہی وہ سبسڈی جو ہے کسان کو مل جائے۔ بیجوں کے اوپر، گندم کے بیج کے اوپر نئی ورائٹیاں جو ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ نے ایک سبسڈی اناؤنس کی ہے، وہ ڈیلر کے پاس اویلیبل ہے۔ جیسے ڈی اے پی کی سبسڈی مل رہی ہے، ویسے ہی گندم کے بیج کے اوپر بھی سبسڈی مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ مشینی کاشت کو فروغ دینے کے لیے گورنمنٹ نے ایک بڑا منصوبہ شروع کیا ہے، جس کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے ایمرجنسی پروگرام کے تحت کچھ 6 قسم کی مشینیں جو ہیں گندم کے لیے، صرف گندم کے لیے انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں، جس میں بہت سارے لوگ مستفید بھی ہوئے۔ کچھ لوگ اس میں حصہ بھی مستفید ہوئے ہوں گے۔ پچھلے 3 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے، اور ہر سال گندم کی کاشت سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زمینداروں کو مشینری دی جائے۔ اسی طرح سے زمین کو بہتر بنانے کے لیے اور زمین کی پیداوار بہتر بنانے کے لیے گورنمنٹ وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے انیشیٹو دیتی ہے۔ نہ صرف گندم کے اوپر، تیلدار جناز کے اوپر حکومت نے 5000 روپیہ فی بیگ کینولا کے اوپر زمیندار کو آسان طریقے سے سبسڈی فراہم کی،
ताकि जो लोग तेलदार जनाज काश्त करना चाहते हैं उनको भी वो भी इस सब्सिडी के प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकें। काश्तकार भाइयों, आज का जो प्रोग्राम है ये वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत मुनक़्क़द किया जा रहा है। महकमा ज़राअत तौसील इस प्रोग्राम को मुनक़्क़द कर रहा है और प्रोग्राम का जो आज का हमारा मेन एजेंडा है वो यही है कि हमने गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाना है और इस फसल को काश्तकारों के लिए मुनाफा बख्श भी बनाना है और इसके साथ साथ हमने अपने मुल्क को गंदम में खुद कफील करना है। बहुत सारी बातें यहाँ पे आज हमारे साइंसदानों ने, हमारे माहिरीन ने आपको गोश्तवार किए हैं, लेकिन मैं उनको दोबारा 5 मिनट में आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। पहली बात जो गंदम के हवाले से आपको बतानी है कि अगर हम तमाम फैक्टर, तमाम अवामल को देखें कि हमने गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार कैसे बढ़ानी है, तो उसमें सबसे अहम जो बात है ना वो है वक्त काश्त। बाकी चीज़ें सारी सानवी हैं। इस फसल के लिए स्पेशली जो मेन बात है, जो अहम बात है वो है वक्त काश्त। अगर हम इस फसल को नवंबर के महीने में, 11वें महीने में काश्त कर लेंगे तो समझ लें कि हमने 50 से 60 मन फ़ी एकड़ की बुनियाद रख बढ़ेगी और जिससे हमें जो है वो फ़ायदा होगा। अदरवाइज हम जब आग लगाते हैं, असल में ये फॉर्म तो हमें तो बुलाया गया था माहिरीन का राय और मशवरा और इनके गंदम की पैदावार बढ़ाने के इकदाम के सिलसिले में, तो हम तो इनकी बातें सुनने आए थे। अचानक उन्होंने हुक्म दिया कि आपने भी कुछ यहाँ बातें करनी है, क्योंकि मैं काश्तकार हूँ, आप में से हूँ और अब माशाल्लाह सारे तजर्बाकार लोग बैठे हैं। तो गंदम किस तरह जानते हैं आपके, आबादी हमारी दिन ब दिन बढ़ रही है। हर साल दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में आबादी का ग्रोथ रेट हैरान कन तक, परेशान कन तक ज़्यादा है और ज़मीन हमारी सुकड़ रही है। सुकड़ने से मुराद में ये है कानूनी इसमें बहुत सारी ज़मीन हमारी जा चुकी है और अब भी जा रही है कानूनी में। जो हमारे पास बचा हुआ है काश्तकार के लिए इलाका, उसके लिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें ताकि मुल्क को गंदम में खुद कफील कर सकें। अच्छा सेमिनार इनकार उसका किया और चूँकि गंदम की बिजाई का मौसम है तो ये बहुत बर वक्त है कि आपने किसानों की आगाही के लिए इस प्रोग्राम का इन दिनों में इनेकाद किया है। उसके अलावा हमारे जो भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जनाब खान आफ्ताब खान खिची साहब, भाई नवाज खिची साहब और चौधरी बशीर साहब हैं, बाकी जो मौजूद यहाँ पे मौजूद हैं स्टेज पे और यहाँ पर भी, तो इन सब ने और जो माहिरीन यहाँ पे आके जिन्होंने अपने तजर्बात की रोशनी में हमें गाइड किया है, हमारी रहनुमाई की है, इन सब के हम मशकूर हैं कि इन्होंने वक्त निकाला और एक दूसरे की बेहतरी के लिए, अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपने ज़िम्मेदारों की बेहतरी के लिए तजावीज़ दी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह कुदरत मेहरबान होगी और इस साल हमारी फसलें जो हैं वो पहले से बेहतर होंगी और हमारे कुछ किसान भी उस खुशहाली का जो फल है उसको समेटेंगे। अपने हवाले से मैं ये थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि मैंने तो काफ़ी साल इस्लामाबाद में नौकरी की है। अभी अगस्त में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ 60 साल की उम्र में, तो अब मैं साबिक चीफ हूँ, इस वक्त मैं चीफ नहीं हूँ। और सारी जो है ना सर्विस के दौरान हमने अंग्रेज़ी लिखी है, अंग्रेज़ी बोली है, उर्दू में बात की है, लेकिन हमारे जो मुकर्रीन थे उन्होंने हमारा काम ये आसान कर दिया कि पंजाबी में बात की है, सराइकी में बात की है। तो मेरा ख्याल है कि मैं दफ्तर भी छोड़ आया, तो अंग्रेज़ी भी उर्दू भी तकरीबन जितनी मजबूरी है उससे बोला कि इतनी ज़रूरत है नहीं बोलने। तो मैं शुक्रिया अदा करे अपने माहिरीन ज़राअत दा राणा मोहम्मद आरिफ साहब
डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी बिहाड़ी और जनाब आशिक हुसैन सांगी साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ लाए। मैं इंडस्ट्री साहब यूनियन गड़ा मोड़ के उहदे दौरान जेह्ड़े तशरीफ लाए ने शिरकत की, बहुत मेहरबानी। प्रेस क्लब गड़ा मोड़ के सारे दोस्त तशरीफ लाए ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता जनाब नसर इकबाल साहब जो कि साढ़े मेहमान खसूसी हैं, और नुमाइंदा MNA तारिक इकबाल साहब के हैंड तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करे साहब ने आफ्ताब फांकी जी साहब, बहुत शुक्रिया सर। हाजी मोहम्मद नवाज साहब, चौधरी कमर इकबाल साहब, चौधरी सफदर अली साहब और चौधरी मोहम्मद रशद गोंदर साहब, क्योंकि काश्तकारों का इज्तमा है, उन्होंने साड़ी काफ़ी मामलत की थी इस पिंडार से जाने, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब तशरीफ फरमाए और भाई नज़ीर अहमद साहब दीनदार तशरीफ फरमाए। डॉक्टर लियाकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, साढ़े मामलत की थी रहीम साहब ने, बहुत शुक्रिया जनाब। और चौधरी जफर इकबाल जट साहब का खसूस शुक्रिया अदा कर, ज़ाती मसरूफियात की वजह तो वो ज़रा जम तशरीफ लै गए, वो भी पिंडाले तशरीफ लाए हैं काश्तकार की हैसियत नाल, उन्होंने भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे दोस्तों का मिन जुमला सारे काश्तकार सारा का मैं नाम नहीं लै सकता, बहुत शुक्रिया। तुसा सारी मामलत की थी और महरीन के मशवरे सुने, इंशाअल्लाह इस पर अमल करें। सेमिनार के आखिर पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी MLC मार तालिब हुसैन ने हाजी मियां रज़ाक अहमद चुगत्ता, हाजी मोहम्मद रमज़ान गुज्जर और हाफिज़ नज़ीर अहमद का बेहतरीन इंतजामात करने पर शुक्रिया अदा किया, जबकि सेमिनार में शिरकत करने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और काश्तकारों का भी ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में MNA ताहिर इकबाल चौधरी के बड़े भाई चौधरी नसर इकबाल ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कैमरामैन मार रमज़ान सियाल के साथ रशीद हैदर, योर वॉइस न्यूज़, गड़ा मोड़।